Okay, so we have seen the glycolysis. We have seen this part, this part. Now energetics of glycolysis. I have already explained you. मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो भी, फिर भी मैंने यहाँ पे समराइज किया है. So energetics of glycolysis. So you can see over here again energetics of glycolysis, right? So glycolysis occurs in the different phases. Okay? So in the phase 1, what happens in the phase 1? In the first phase 1, two reactions which consumes the ATP. So first reaction hexokinase which consume the phosphorylation, for the phosphorylation 1 ATP. Okay, kinase that catalyze the conversion of glucose into glucose 6 phosphate by using 1 ATP. So minus 1. In the third step, okay, in the third step, second step is isomerization. In third step, phosphorokinase will catalyze the formation of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 bisphosphate. So again 1 ATP is utilized, 2 ATP, minus 1 minus 1. Okay, now phase 3, phase second जो होता है उसमें कोई एनर्जी यूटिलाइज भी नहीं होता, वहाँ पे कोई गेन भी नहीं होता. So phase second is nothing but the splitting phase. So that's why I have not listed that phase. So directly come to the phase 3. So phase 3 में क्या होता है, glyceraldehyde 3 phosphate, that is the dehydrogenation will be there. So glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase will convert glyceraldehyde 3 phosphate into 1,3 bisphosphoglycerate, right? You know that. So with the giving of NADH molecule, but यहाँ पे दो, या here 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate are generated, so 2 NADH molecules, so it will give you 6 ATP under electron transport chain, right? Now phase 4, in the phase 4 glyceraldehyde 3 phosphate kinase will catalyze one reaction, so substrate level phosphorylation. So glyceraldehyde 3 phosphate will be converted into glyceraldehyde 2 phosphate with the release of 1 ATP molecule, but molecules of glyceraldehyde 3 phosphate are 2, so 2 ATP. Phase 5, so in the conversion of phosphoenol pyruvate to the pyruvate, phosphoenol pyruvate to the pyruvate, again there is a substrate level phosphorylation and again 2 ATP are generated. So total 10 ATP are generated in the glycolysis, 2 ATP are consumed, so 8 ATP are produced in the glycolysis. Under aerobic ATP gain, total ATP gain under aerobic condition 8 ATP. Now total ATP gain under anaerobic condition, because NADH will not be reoxidized, so that is utilized to convert the lactate. So under aerobic condition only, under anaerobic condition only 2 ATP are formed. I have already explained this, okay, in the previous slides. Now metabolism of glucose that takes place in the 3 phases. आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज का वो 3 फेज में होता है. So metabolism of glucose will takes place in the 3 phases. So what is phase 1? Phase 1 is nothing but the glycolysis. Phase 2 is nothing but the phase 1 is a glycolysis, we have seen that. तो glycolysis का end product क्या है, pyruvate. End product is a pyruvate, right? We have seen that pyruvate is the end product. So now second phase, pyruvate is converted into acetyl CoA. Pyruvate converted into acetyl CoA, that is second. Phase 3 is nothing but the TCA cycle. ठीक है, तो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके बॉडी में मेटाबलाइज होने के लिए 3 फेज है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. फेज 1 में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है. फेज 2 में क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है क्या होता है, पायरुवेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए. तो फेज सेकंड में एसिटिल कोए बनेगा. ठीक है, फेज 3 में क्या होगा, फेज 3 में एसिटिल कोए का पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा. सो एसिटिल कोए विल बी कन्वर्टेड इनटू water and carbon dioxide in the phase 3. So glucose molecule is oxidized in the 3 phases. Phase 1 glycolysis, phase 2 conversion of pyruvate to acetyl CoA, and phase 3 conversion of acetyl CoA into carbon dioxide and water. Phase 3 is a TCA cycle. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज phase 1, phase 2, phase 3. ये आपको नॉर्मल सत्यनारायण की बुक में नहीं दिया है. दैट्स व्हाई लेट क्यों लेता हूँ लेक्चर में, थोड़ा सा कल क्यों नहीं लिया, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि नेक्स्ट ईयर में क्या पूछेंगे वो किसी को, यहाँ पे इम्प्रोवाइज करते रहता हूँ लेक्चर्स को, और पूरा नहीं तो मैं पिछले वाले लेक्चर तो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में, पिछले वाले लेक्चर भी देख के आप क्वालिफाई कर सकते हो. लेकिन पैसे क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका लेक्चर इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, मटेरियल इंक्रीज कर रहा हूँ. ठीक है, मटेरियल भी अलग अलग है, तो आप स्नैपशॉट या फिर लिख के लेना,
वो आपका ड्यूटी है. You have to make your notes during the lecture. Irreversible steps in the glycolysis, they are also known as the regulatory steps in the glycolysis. Irreversible steps in the glycolysis known as a regulatory step. कौन सा है? Reaction catalyzed by hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase. अभी देखो, जो सत्यनारायण है, as per the सत्यनारायण, regulatory steps in the glycolysis, that is catalyzed by phosphofructokinase, that is a conversion of fructose 1,6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate, that is the regulatory step as per the सत्यनारायण. बट ये दूसरा बुक है के अकॉर्डिंगली जो इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड सेकंड लास्ट स्टेप, तो वो सभी क्या है? रेगुलेटरी एज पर द अनदर बुक. ठीक है, तो वो डिफरेंस है. पास्चर इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगा आपको व्हाट इज मीन बाय पास्चर इफेक्ट. व्हाट इज पास्चर इफेक्ट? नाउ सी, decrease in the glycolysis under anaerobic condition. वहाँ पे मैंने aerobic लिखा था, तो यहाँ पे करेक्ट है. So decrease in the glycolysis under anaerobic condition in presence of oxygen, or aerobic glycolysis is decreased by aeration. Aeration मतलब क्या? हवा देना, मतलब ऑक्सीजन देना. Okay, so this was observed by Pasteur while studying the fermentation of glucose by yeast cell. So in presence of oxygen, less amount of glucose is broken down, but in absence of oxygen, more alcohol was produced. This phenomenon was observed by this Pasteur sir, and this is known as a Pasteur effect. So phenomenon of inhibition of glycolysis in presence of oxygen is known as a Pasteur effect. Is that clear? क्योंकि पास्चर इफेक्ट आ सकता है आपको. व्हाट इज पास्चर इफेक्ट? इनहिबिशन और डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडर द ऑक्सीजन इन एनारोबिक कंडीशन. ठीक है, जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन ऐड करेंगे या फिर एरेशन करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस का रेट डिक्रीज होता है. तो इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ oxygen. So that phenomenon is known as a Pasteur effect. Second phenomenon is there known as a Crabtree effect. Crabtree effect में क्या होता है? Decreased respiration of cellular system. Crabtree effect में क्या होता है? Decreased respiration of cellular system caused by increased concentration of glucose. Okay, so concentration glucose का अगर ज़्यादा है तो respiration क्या होगा? कम होगा. And that is nothing but the Crabtree effect. Decreased respiration of cellular system caused by high concentration of glucose, which is opposite to the Pasteur effect. ये क्या था? Crabtree effect. ठीक है. नेक्स्ट होता है आपका डेंटल कैरीज. डेंटल कैरीज क्या होता है? ये आपने मे बी सेकेंड ईयर में अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. डेंटल कैरीज. सो डेंटल कैरीज इज नथिंग बट द रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ योर इनेमल. ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमल. इनेमल इज द टफेस्ट लेयर ऑन द टीथ. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. टफेस्ट लेयर और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर टीथ, दैट इज इनेमल. ओके, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ टीथ बाय एसिड्स. कौन से एसिड? लैक्टिक एसिड, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. अगर आप जो खाना खाते हो आपके दांत में रहेगा, आप ब्रश नहीं करोगे, या फिर ब्रश तो नहीं करना चाहिए, ब्रश करना टोटली गलत है. इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हो सकती है. ब्रशिंग इज टोटली इंजरियस टू योर टीथ. आप जो सुबह सुबह उठ के पेस्ट लगा के घिसते हो ना खसाखस दांत को, वो गलत है. घिसना नहीं चाहिए. घिसना मतलब इनामल का रिमूव करना. तो वही होता है ना कि पहले आपको सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करेंगे. जो सेंसिटिविटी होता है टीथ में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रशिंग. मोस्ट ऑफ द सेंसिटिविटी इज बिकॉज ऑफ द ब्रशिंग. जो सुबह सुबह एक एक घंटा, कुछ लोगों को तो इतना आदत पड़ चुका है, कोलगेट लेंगे घिसते बैठेंगे दांत. घिसने का मतलब है इनामल खराब करना. तो घिसो मत. पुराने जो है दादा दादी, वो हाथ से दांत घिसते थे. क्यों? उनको दैट इज द रीजन. नाउ ये अलग पार्ट है, उसके ऊपर बहस हो सकती है. नाउ डेंटल कैरीज एंड ग्लाइकोलाइसिस. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड डेंटल कैरीज? सो डिस्ट्रक्शन ऑफ इनामल ऑफ टीथ बाय acids, that is lactic acid, which is produced by the bacteria Streptococcus mutans and Lactobacillus in the cavities in absence of oxygen. आपके दांत में जब आपका जो खाना है वो वहाँ पे अटक जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं. बैक्टीरिया करते हैं
वो खाने में जो ग्लूकोज है, चॉकलेट खाते हो आप जो भी, तो चॉकलेट जो खाते हो तो उसमें ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटस एंड लैक्टोबैसिलस, और वो जो एसिड है वो आपके इनेमल को इरोजन करता है, करोजन करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई डेंटल कैरियन ग्लाइकोलिसिस, तो ये भी रिलेशन होता है। अनदर इज नथिंग बट द रैपापोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल। रैपापोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल, ये आपको किसी के पापा ने भी पढ़ाया, आपके कॉलेज में तो ये नाम भी नहीं लिया। रैपापोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल, so it is again a supporting pathway for glycolysis in the red blood cell RBCs of the humans and other mammalian. तो Rapaport Lubering cycle, Rapaport, okay, Rapaport Lubering cycle is supporting pathway for glycolysis in the RBC of the human and other mammals. Now it is related with the synthesis of 2,3-bisphosphoglycerate. Synthesis of 2,3-bisphosphoglycerate. So glucose is converted into lactate via 2,3-bisphosphoglycerate. तो आरबीसी में क्या है कि आरबीसी में पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट, क्योंकि आरबीसी में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो पायरुवेट का क्या बनेगा, लैक्टेट बनता है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग लैक्टेट, लैक्टेट बन गए तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, सो ओके, सो दैट there is a synthesis of bisphosphoglycerate. So glucose is converted into lactate via bisphosphoglycerate. That is a Rapaport-Lubbe-Ring cycle. आप सिर्फ इतना याद रखो. Now what is the importance, what is the significance of that 2,3-bisphosphoglycerate? 2,3-bisphosphoglycerate का क्या importance है? What is the biochemical significance of that 2,3-bisphosphoglycerate? So I have listed one. So 2,3-bisphosphoglycerate allows the glycolysis to be succeeded to be proceed without synthesis of ATP. तो बिस्फॉस्फो अपन ने देखा है ग्लाइकोलिसिस में नॉर्मल क्या होता है, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ना, 1,3, ठीक है, 1,3 बनता है, 2,3 नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे 2,3 बनता है ये साइकिल में, रैपापोर्ट लुबिरिंग साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट? नॉर्मली 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, बट यहाँ पे क्या है, 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बना है। Now 2,3-bisphosphoglycerate allows the glycolysis to proceed without synthesis of ATP. तो नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस में ATP बनता है, लेकिन अगर 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट की बजाय 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बना आपका, तो वहाँ पे ATP नहीं बनेगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस चलते रहेगा, ठीक है। इट अलाउज द proceeding of glycolysis without synthesis of ATP, that Rapaport-Lubering cycle is nothing but the alternative pathway, or it is a shunt for glycolysis, which dissipate or which waste the energy needed, okay, energy needed for RBC, dissipate or waste the energy needed for RBC. Now 2,3-bisphosphoglycerate combined with the hemoglobin, also it combines with the hemoglobin and reduces the hemoglobin affinity for oxygen. So in presence of 2,3-bisphosphoglycerate, oxyhemoglobin unloads more oxygen to the tissue. तो एनीमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन, ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा होता है, तो 2,3-bisphosphoglycerate will help to unload more oxygen in the tissue. So 2,3-bisphosphoglycerate will help to supply the oxygen in case of anemia, hypoxia, fetal tissue and high altitude. That is the significance of 2,3-bisphosphoglycerate. क्वेश्चन एक बार आ चुका है इसमें, अभी किस ईयर आया है वो मैंने लिस्ट नहीं किया है, आ चुका है। नाउ फेट ऑफ पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनाए, पायरुवेट, so end product of glycolysis is a pyruvate. So what will happen with that pyruvate? जो ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनाए उसका क्या होगा? पहले अपन ने देखा है कि ग्लूकोज के नसीब में क्या लिखा है, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, वैसा ग्लूकोज के नसीब में क्या क्या था वो देखा है। अभी ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, पायरुविक एसिड, तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। अभी इसके नसीब में क्या है, तो पायरुविक एसिड बोलेगा ना फिर, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हो कि नहीं, ठीक। तो पायरुविक एसिड का नसीब में कौन है? तो इन द फेट ऑफ पायरुविक एसिड
का क्या बनेगा, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए, पायरुविक एसिड और पायरुवेट, आप पायरुवेट बोलो पायरुविक एसिड बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू acetyl CoA, pyruvic acid into convert to acetyl CoA by the oxidation, by the oxidative decarboxylation, by the oxidative decarboxylation in presence of oxygen, in presence of oxygen. Okay, pyruvic acid is also converted to lactic acid by reduction into reduction in absence of oxygen. आपने देखा है pyruvic acid is converted to lactic acid, pyruvate is converted to lactate in absence of oxygen. Then pyruvic acid is also converted into alanine amino acid by deamination, by amination, sorry. Then pyruvic acid is converted into glucose by gluconeogenesis. Then pyruvic acid can be converted into malic acid, okay, malic acid, and then in turn converted into oxaloacetic acid, OAA मतलब oxaloacetic acid. Pyruvic acid is converted into oxaloacetic acid by CO2 fixation और reduction. तो pyruvic acid जो बना है ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस के कारण जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट का एसिटिल कोई बनता है, पायरुवेट का आपका लैक्टिक एसिड बन सकता है, पायरुवेट का आपका अलानिन बन सकता है, पायरुवेट का ग्लूकोज बन सकता है, पायरुवेट का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नसीब है, किसके नसीब, पायरुविक एसिड का, ठीक है। तो पायरुविक एसिड के नसीब में ये सब लिखा है। सो व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए, कन्वर्टेड इनटू lactic acid, converted into alanine, converted into glucose, converted into malic acid, converted into oxaloacetic acid. Okay, so this is the fate. Now this pyruvic acid is converted into acetyl CoA. ये important है, pyruvic acid is converted into acetyl CoA. This is important because acetyl CoA is the starting product of your Krebs cycle. Krebs cycle के लिए acetyl CoA लगेगा आपको starting product, ये भी लगेगा और oxaloacetic acid भी लगेगा, ठीक है। जो Krebs cycle है उसका प्रोडक्ट कहाँ से बनता है, उसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट कहाँ से बनता है, जो पायरुवेट है, पायरुविक एसिड जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, उसका ही बाद में ऑक्सैलोएसिड बनेगा, उसका ही एसिटिल कोए बनेगा, बाद में क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, ठीक है। नाउ एक टर्म आता है एनालेप्रोटिक रिएक्शन, एनालेप्रोटिक रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एनालेप्रोटिक, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन वो अलग है फार्माकोलॉजी का, ये एनालेप्रोटिक रिएक्शन, एनालेप्रोटिक रिएक्शन मतलब क्या, sudden influx of pyruvic acid or acetyl CoA. So if there is a sudden increase in the pyruvic acid or sudden increase in the acetyl CoA of your body, so these kind of reactions happen, एनालेप्रोटिक रिएक्शन, ठीक है। अगर आपके बॉडी में सडन पायरुविक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, सडन एसिटिल कोई लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सो टीसीए साइकिल, इन द टीसीए साइकिल देयर इज अ सीरियस डिप्लेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट, ठीक है। अगर आपके बॉडी में सडन पायरुवेट बढ़ जाएगा, सडन एसिटिल कोए बढ़ जाएगा, सो देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट इन द क्रेब्स साइकिल। क्यों, क्योंकि जो एसिटिल कोए बनाए वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में स्टार्टिंग प्रोडक्ट, क्रेब्स साइकिल में स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटेट ही आता है, तो इट विल कंबाइन द एसिटिल कोए टू फॉर्म अ साइट्रिक एसिड, तो ऑक्सैलोएसिटेट कम पड़ जाएगा ना वहाँ पे। सो देयर इज अ सीरियस डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ साइट्रेट synthesis reaction. So this is also known as a filling up reaction or anaerobic reaction. So there is a auxiliary pathway to prevent this, to that's why, ठीक है। अगर पायरुविक एसिड बढ़ गया तो ये एनालेप्रोटिक रिएक्शन हो जाएगा, तो इसके लिए न हो बॉडी में, ये न हो इसलिए क्या है कि ऑक्सिलरी रिएक्शंस थे, ऑक्सिलरी मतलब सपोर्टिंग रिएक्शन, कौन से, तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और इट इज कन्वर्टेड टू एसिटिल कोए, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू द एसिटिल कोए, ओके, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू द एसिटिल कोए कैसे होता है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोए, that is done by one enzyme known as a pyruvate dehydrogenase complex. So conversion of pyruvate to the acetyl CoA by oxidative decarboxylation, which is irreversible and catalyzed by one enzyme known as a pyruvate dehydrogenase complex or PDH simply. Now it is found only in the mitochondria, and the enzyme complex, that is a pyruvate dehydrogenase complex, requires cofactors लगते हैं उसको। cofactors क्या होता है, we will see, I will explain in the
विटामिन चैप्टर, बट यहाँ पे भी थोड़ा करता हूँ. Co-factors means these are the co-factors means these are the vitamins, okay, which are required for the activation of enzyme. Okay, लगता है इसको TPP, that is thymine pyrophosphate, TPP. Then FAD, flavin adenine dinucleotide. NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. Then lipomide and coenzyme A. मतलब पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो काम तभी करेगा कब ये उसके साथी है ना. आप बोलते हो ना, नहीं यार आपको कोई लड़की पसंद है तो आप वो उसको जाके प्रपोज करते हो, लेकिन अकेले नहीं जाते हो. कब करते हो, नहीं यार तू चलना मेरे साथ, दोस्त है नहीं तो मेरा. तो ये दोस्त है उसके. ओके, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज के कौन दोस्त है, ये टीपीपी, एफएडी एंड एनएडी. दीज आर द को फैक्टर फॉर पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज. और इसका काम क्या है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज का, so it will convert pyruvate or pyruvic acid to acetyl CoA, because acetyl CoA is required for the Krebs cycle. We'll see that reaction. Okay, now what is the biochemical importance of this pyruvate dehydrogenase? ये एंजाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों है भाई, क्योंकि ये क्या करता है. ओके ये ओके बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस, ये क्या करता है पायरुवेट का कन्वर्जन करता है एसिटिल कोए में, राइट. इन केस ऑफ थायमिन डिफिशियंसी, अगर आपको थायमिन का डिफिशियंसी है, विटामिन बी वन इज नोन एज थायमिन. सो इफ देयर इज अ थायमिन डिफिशियंसी देयर इज अ लेस टीपीपी, थायमिन पायरोफॉस, एंड देयरफॉर देयर इज अ लेस पीडीएच एक्टिविटी, मतलब देयर इज अ लेस पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एक्टिविटी, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ accumulation of pyruvate in the body. Then if there is a vitamin B1 deficiency, thiamine deficiency, so that is most common in the alcoholics. जो दारू पीते हैं बेवड़े वाले होते हैं, बेवड़े वाले हो, बेवड़े में क्या होता है विटामिन B1 का डिफिशियंसी. सो पायरुवेट टू लैक्टेट इन द alcoholics, and therefore there is a rapid development of lactic acidosis. जो बेवड़े वाले लोग होते हैं ना उनमें क्या होता है एसिडोसिस होता है, लैक्टिक एसिडोसिस. क्यों होता है, क्योंकि दारू पी 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 के उनका जो इंटेस्टाइन है वो इतना खराब हो जाता है कि वो विटामिन B1 को एब्सॉर्ब ही नहीं करता. तो विटामिन B1 को एब्सॉर्ब नहीं करता तो फिर डेफिशिएंसी हो जाता है. डेफिशिएंसी हो गया तो पायरुवेट जो है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस, उसके लिए विटामिन B1 क्या है को फैक्टर है इन द फॉर्म ऑफ थायमिन पायरोफॉस्फेट. तो वो को फैक्टर नहीं मिलेगा तो ये पूरा अपना काम नहीं कर पाएगा. तो ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुवेट बनेगा वो लैक्टेट नहीं बन, वो क्या है वो पायरुवेट का एसिटिल कोई नहीं बना सकता. तो वो क्या बनेगा पायरुवेट का लैक्टेट बनेगा. लैक्टेट मतलब क्या लैक्टिक एसिड, तो उसको बनेगा लैक्टिक एसिडोसिस. देन थर्ड क्या है आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग. आर्सेनिक और मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गया तो फर्स्ट ठीक है डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो उसको इनहिबिट करता है. कौन, मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग. ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बायोकेमिकल एंजाइम. ये रिएक्शन क्या है कौन सा है, दिस इज अ पायरुवेट. पायरुवेट का स्ट्रक्चर ही होता है CH3C डबल बॉन्ड O COO. सो दिस इज द पायरुवेट विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ये कहाँ से आएगा, ग्लाइकोलाइसिस से आएगा. पुण्य देखा है ग्लाइकोलाइसिस पूरा. सो एंड प्रोडक्ट, सो दिस pyruvate is converted into pyruvate is coupled, it is a pyruvate is converted into this hydroxy ethyl thymine pyrophosphate, hydroxy ethyl thymine pyrophosphate by the enzyme pyruvate dehydrogenase. Why this requires a TPP, thymine pyrophosphate. So thymine pyrophosphate will be combined with the pyruvate to form a hydroxy ethyl TPP. Now again another, so hydroxy ethyl TPP is a reduced form. Okay, so another enzyme dihydrolipolyl transacetylase. Dihydroxylipolyl transacetylase ये क्या करेगा, it will transfer this acetyl group CH3 C double bond O, okay, group to the lipomide. ये वाला पार्ट जो है वो लिपोमाइड का है. लिपोमाइड क्या है, को फैक्टर फॉर pyruvate dehydrogenase. So there is a transfer of this acetyl group to the lipomide. Okay, second step by the enzyme dihydrolipoyl transacetylase, right. Now बाद में क्या होता है, so there is a removal of this CoA-SH, okay, CoA-SH and acetyl group. So acetyl group will combine with the CoA and this acetyl lipomide will be reduced and will be converted into this lip-SH, and which is coupled with the another enzyme dihydrolipoyl dehydrogenase.
एंड अल्टीमेटली ये डीहाइड्रोजनेज क्या करता है, ये कपल होता है किसके साथ में, एनएडी। तो एनएडी जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, दैट इज कन्वर्टेड टू एनएडीएच। तो यहाँ पे 3 एनएडीएच मिलता है, कितना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एनएडीएच मिलता है, तो यहाँ पे 3 एटीपी मिलता है, याद रखो 3 एटीपी, ठीक है। लेकिन पायरुवेट कितना बनता है, पायरुवेट बनता है 2 ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट 2 बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे एटीपी कितना मिलेगा फाइनली, तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटिल कोए 6 एटीपी। यहाँ पे याद रखो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटिल कोए बाय द पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स विल गिव यू 6 एटीपी। आपने बोला सर यहाँ पे तो 3 लिखा है, आप 6 क्यों बोल रहे हो? देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है पायरुवेट का, तो आपको 3 एटीपी मिलेगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट undergo phosphate dehydrogenase complex and will give you acetyl CoA with the 1 NADH molecule. So 1 NADH molecule will give you 3 ATP. Correct. But in the glycolysis, glycolysis में क्या बना था, 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate, बाद में सब उसके बाद में सब 2 बनाए, तो पायरुवेट भी कितना बना है लास्ट में 2 molecules of pyruvate. So 1 molecule of pyruvate will give 3 ATP, 2 molecules will give, ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी मिला है आपको, तो ये ग्लाइकोलिसिस में कितना मिला है 8, याद रखो ग्लाइकोलिसिस में 8। अभी ये पायरुवेट पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल कोए में हुआ तो कितना बना 6 एटीपी, और बाद में आपका क्रेब साइकिल में मिलता है आपको 12 एटीपी, कितना मिलता है 12। सो 12 + 6 + 8 कितना होता है 28, सॉरी 38, 12 प्लस होता है 38। So 1 molecule of glucose will give you 38 ATP. 1 molecule of glucose will give you 38 ATP. ये कैसा है बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। Now we'll see the next. Okay. Now जो acetyl CoA बना है आपका in this reaction. Okay. So in the reaction of pyruvate to the acetyl CoA, pyruvate से क्या बना है आपका acetyl CoA. So by using pyruvate dehydrogenase, so pyruvate was the end product of glycolysis. After the pyruvate dehydrogenase, you are going to get एसिटिल कोए। और एसिटिल कोए का फेट क्या है, इसका नसीब क्या है, तो एसिटिल कोए का नसीब देखो, अभी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, आपको मिलेगा पायरुवेट, पायरुवेट का पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज बनाएगा एसिटिल कोए, ठीक है, ये होगा। जब फैटी एसिड जो होता है लिपिड्स, लिपिड्स का भी ऑक्सीडेशन होता है और बनता है आपका लास्ट में एसिटिल कोए। एसिटिल कोए सेंट्रल मॉलिक्यूल क्यों है, उसका रीजन। देन कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है एसिटिल कोए, ठीक है। नाउ ये एसिटिल कोए जो बना है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होके एसिटिल कोए बना है, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होके एसिटिल कोए बना है। सो आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड यू आर गोइंग टू गेट अगेन एसिटिल कोए, एंड दैट्स व्हाई एसिटिल कोए इज नोन एज सेंट्रल मॉलिक्यूल। एसिटिल कोए इज नोन एज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल, एसिटिल कोए इज नोन एज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, okay, carbohydrate metabolism will give you acetyl CoA, lipid metabolism will give you acetyl CoA, and amino acid metabolism will give you acetyl CoA. Now this acetyl CoA molecule is used for either oxidation, it will undergo Krebs cycle for oxidation to give energy। इसका एसिटिल कोए का मेटाबॉलिज्म होके क्रेब्स साइकिल में जाएगा, उसका एनर्जी मिल जाएगा एटीपी, या फिर एसिटिल कोए will be utilized for the synthesis of fatty acid, or acetyl CoA will be utilized for the synthesis of cholesterol, or for synthesis of steroid hormones, or synthesis of ketone bodies। तो acetyl CoA इसके लिए भी यूज किया जाता है। So that's why acetyl CoA is very important molecule and it is a central molecule for all metabolism। Now Krebs cycle आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। So acetyl CoA will be here, okay, acetyl CoA will be synthesized। acetyl CoA is a end product of your carbohydrate metabolism, lipid metabolism, and amino acid metabolism. So it will enter into Krebs cycle. Krebs cycle will start with the acetyl CoA and this oxaloacetic acid, okay, oxaloacetate will combine with the acetyl CoA to form a citric acid, that is catalyzed by citrate synthetase enzyme. Now after citric acid will be isomerized, so citric acid will be isomerized into isocitric acid. That also happens in the 2 step, we will see in the detail in next slide. Now isocitrate
इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है उसमें। आइसोसिट्रेट यहाँ पे देखो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, देन यहाँ पे आइसोसिट्रेट आइसोमरेज एंजाइम, यहाँ पे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, क्योंकि इसमें एक एनएडीएच मॉलिक्यूल मिलता है आपको, दैट विल गो इट अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज विल कन्वर्ट इट इनटू दिस मॉलिक्यूल, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट। सो अल्फा कीटोग्लूटारेट ये आइसोसिट्रेट है, दिस इज आइसोसिट्रेट, सो दिस इज अल्फा कीटोग्लूटारेट, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है आफ्टर द फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कार्बन एटम उसको बोलते हैं अल्फा, तो उसके ऊपर कीटोन है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ग्लूटारेट मतलब 4 कार्बन एटम। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज इनटू सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिल कोए, फिर सक्सिनिल कोए with the release of NADH. Succinyl CoA will be converted to succinate with the release of ATP. Then succinate will be converted to fumarate with the release of APDH2. Fumarate will be converted to malate, and malate will be converted to oxaloacetate. This cycle will be repeated. This is known as a Krebs cycle. This is known as a Krebs cycle or citric acid cycle और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखो फिर से देखो, ठीक है, फिर से जो पायरेविक एसिड और क्या है, इसको बोलेंगे पायरुवेट, पायरेविक एसिड और पायरुवेट दैट कम्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कम्स फ्रॉम द अमीनो एसिड, आल्सो कम्स फ्रॉम द फैटी एसिड। देखो यहाँ पे फैटी एसिड जो है उसका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा, क्या बनेगा, एसिटिल कोए। पायरुवेट का भी क्या बनता है बाद में, एसिटिल कोए, वी हैव सीन पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, सो दिस एसिटिल कोए। पायरुवेट से ही बनता है ऑक्सलोएसिटेट, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज करेगा उसका ऑक्सलोएसिटेट। नाउ ऑक्सलोएसिटेट इज द इम्पोर्टेंट, सो ऑक्सलोएसिटेट will acetyl CoA will combine with the oxaloacetate to form a citrate by using citrate synthetase। citrate synthetase नाम का एंजाइम है। citrate will be converted to isocitrate by cis aconitase enzyme। then isocitrate will convert aconitase will convert cis isocitrate into isocitrate, will convert into cis aconitase by enzyme aconitase, and cis aconitase will be converted to isocitrate by the enzyme aconitase। ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, मैंने बोला ना आपको, ये 2। so isocitrate, citrate is converted to isocitrate, so isocitrate is converted to oxalosuccinate by enzyme isocitrate dehydrogenase। here is the release of NADH, वो बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा एंड 3 ATP देगा। oxalosuccinate is converted into alpha ketoglutarate by enzyme आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, इसमें ग्लूटामेट ऐड किया जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द क्रेब्स साइकिल। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, इरिवर्सिबल स्टेप आप बोल सकते हो उसको, ओके, एज लाइक अ 1,3-bis phosphorus। so it is converted into succinyl CoA, it is converted into succinyl CoA। alpha ketoglutarate is converted to succinyl CoA by the enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase। यहाँ पे भी NADH मॉलिक्यूल मिलता है, वो भी 3 ATP देगा। succinyl CoA is converted into succinate by the enzyme succinate thiokinase। यहाँ पे GTP is converted into GDP, ठीक है, और GDP बाद में ADP का ATP बनता है यहाँ। then succinate dehydrogenase, then succinate is converted into fumarate, succinate dehydrogenase। fumarate is converted to malate by enzyme fumarase, and malate is converted into oxaloacetate by enzyme malate dehydrogenase। यहाँ पे भी NADH मिलता है, यहाँ पे 3 ATP, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरिंग succinate to fumarate APD is converted to APDH। APD मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो APDH मॉलिक्यूल आपको 2 ATP देगा। 1 APDH molecule will give you 2 ATP, 1 NADH molecule will give you 3 ATP। तो आपको यहाँ पे ATP मेजर करना पड़ेगा कितना मिला है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे NADH मिला, तो ये 3 ATP, दूसरे इसमें यहाँ पे भी NADH मिला, तो इसका भी 3 ATP, 6 ATP हो गया। ये हो गया, ये एक मिला, ये हो गया 7 ATP। यहाँ पे APDH2 जो है वो 2 ATP देगा, ये हो गया 9। यहाँ पे NADH मिलेगा, एक 3 ATP देगा, यह हुआ 11। 3 3 3 9 प्लस 2 11 प्लस, ओके, 9 प्लस 2 11 प्लस 1, ओके, 12।
मिलता है यहाँ पे, कितना मिलता है इन द साइट्रिक एसिड यू आर गोइंग टू गेट 12 एटीपी, और आपको ग्लाइकोलाइसिस में कितना मिला 8 एटीपी, और बाद में जो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज का एसिटिल कोए में कन्वर्ट हुआ है वो वहाँ कितना मिला 6 एटीपी। तो मिला उसको सबको 12 प्लस 8 30 प्लस 6 36, 12 प्लस 8 कितना होता है 20 26, और ये बाद में बोलता हूँ 38 कैसे आता है। सो यही रिएक्शन समराइज किया है अगेन। सो ऑक्सैलोएसीटेट it will combine with the acetyl CoA to form a citrate by the enzyme citrate synthesis. So citrate will be converted into aconitase, isocitrate, and lastly isocitrate dehydrogenase will convert it into oxalosuccinate. यहाँ पे NADH मिलेगा आपको, ठीक है। Then oxalosuccinate is converted into alpha ketoglutarate by succinate dehydrogenase. बाद में alpha ketoglutarate is converted into succinyl CoA by alpha ketoglutarate dehydrogenase. Succinyl CoA is converted into succinate by succinate dehydrogenase. And succinate is converted into fumarate by succinate. Fumarate is converted to malate and malate in oxaloacetate. तो यहाँ पे 12 ATP आपको मिलेगा, मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बोला है 12 ATP per cycle. Now oxidation of acetyl CoA to the and water is central metabolic pathway, and this was proposed by Hans Adolf Krebs in 1937, and it is known as the Krebs cycle, and it is also known as the TCA cycle or citric acid cycle. ये कहाँ पे होता है? It is located in the mitochondrial matrix. Mitochondria, साइटोसोल में नहीं होता, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंपॉर्टेंट है, इसने नेम याद रखो। TCA cycle is known as the Krebs cycle is known as the tricarboxylic acid cycle is known as the citric acid cycle. So irreversible स्टेप कौन सा है इसमें? irreversible स्टेप कौन सा है? देखो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस विच कन्वर्ट एसिटिल पायरुवेट टू द एसिटिल कोए, ये तो irreversible है पहले जो देखा था। देन एसिटिल कोए सिंथेसिस, ऑक्सैलोएसीटेट जब एसिटिल कोए के साथ में कंबाइन होगा सो दैट इज अ सिट्रेट सिंथेसिस, दैट इज irreversible. आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस जो सेकंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है, दैट इज आल्सो irreversible. ओके, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस, वो भी स्टेप क्या है? irreversible है टू द सक्सिनेट, ये रेगुलेटरी स्टेप भी होता है। देन सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट कोए टू सक्सिनेट, ये भी irreversible होता है, irreversible स्टेप। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायासिन मतलब निकोटीन, पेंटोथेनिक एसिड, they are required as a coenzymes for the TCA cycle. Enzymes of TCA cycles and their inhibitors. तो पहला जो एकोनिटेज एंजाइम है वो क्या करेगा? साइट्रिक एसिड का आइसोमराइजेशन करता है, तो उसको इनिबिट करने वाला कौन है? फ्लोरोएसिटेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट एंजाइम जो है डीहाइड्रोजनेस, उसको इनिबिट करने वाला है आर्सेनेट। सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है उसको इनिबिट कौन करता है? मेलोनेट, इंपॉर्टेंट है। एनापोलिसिस और एनालेप्रोटिक रिएक्शन वी हैव सीन दैट रिप्लेनिश और फुलफिल अप द इंटरमीडिएट ऑफ एसिटिक एसिड साइकिल। तो समरी देखो, ओवरऑल समरी 38 एटीपी कैसे आता है। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस अंडर एरोबिक कंडीशन आपको 8 एटीपी मिलता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू आर गोइंग टू गेट 8 एटीपी। सिट्रिक एसिड साइकिल एरोबिक कंडीशन में 30 एटीपी आता है। ओके, सिट्रिक एसिड मतलब क्योंकि एसिटिल कोए मॉलिक्यूल क्या है? एक बनता है, किससे बनता है? पायरुवेट से, लेकिन पायरुवेट कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, ठीक है। तो 8 एटीपी साइट्रिक एसिड साइकिल का, 6 एटीपी पायरुवेट का, और एसिटिल कोए का 12 एटीपी। पर एसिटिल कोए मॉलिक्यूल कितना पकड़ा है अपन? 12 एटीपी कब देगा? एक मॉलिक्यूल देगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए विल गिव यू 12 एटीपी, बट देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, तो 24 एटीपी, 24, ठीक है, 24 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो रहा है? 38। सो 38 एटीपी अंडर aerobic condition. One molecule of glucose will give you 38 ATP under aerobic condition. One molecule of glucose will give 38 ATP. Under anaerobic condition, one molecule will give 2 ATP. Is that clear? साइट्रिक एसिड साइकिल थोड़ा सा और रिवाइज करना है, वो स्ट्रक्चर समझने के लिए भी है, रखना है याद तो रखो, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना चाहिए कितना है। देखो साइट्रिक एसिड साइकिल क्या है? ए फाइनल मेटाबॉलिक पाथवे फॉर ऑल, बिकॉज जो एसिटिल कोए होता है, एसिटिल कोए इज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल, तो एसिटिल कोए कहाँ से आता है? सो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लाइकोलाइसिस, you will get a pyruvic acid is converted into acetyl CoA, right? Beta fatty acid
उनका उसका ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड, यू विल गेट एसिल कोई, राइट। और ये पायरुविक एसिड जो है उससे ही ऑक्जेलो एसिड बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, so by enzyme known as pyruvate carboxylase। देन एस्पर्टिक एसिड जो होता है उससे भी ऑक्जेलो एसिड बनता है बाय ट्रांसअमाइनेशन। बट आपको ये छोड़ो, ये पार्ट भूल जाओ, बस इतना याद रखो, जो अस्टिल कोए है, अस्टिल कोए वेयर इट कम्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन के बाद में जो पायरुविक एसिड बनता है उससे बनेगा एसिटिल कोए, लिपिड से बनता है लास्ट में एसिटिल कोए, और दिस एसिटिल कोए comes and takes part in the Krebs cycle or citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle। देखो oxaloacetate and this acetyl CoA, they will combine to form a citrate, citric acid, citrate मतलब citric acid, by the enzyme, by the enzyme citrate synthase, citrate synthase with the release of CoA-SH। तो एस्टिल का CoA निकल जाएगा, एस्टिल ग्रुप रहेगा, वो एसिटिल ग्रुप ऑक्सोलोएसिटेट के साथ में कंबाइन होकर साइट्रिक एसिड बनेगा। कितना? साइट्रिक एसिड, फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ सेकंड स्टेप, एक एक स्टेप में बोलता हूँ। सेकंड स्टेप में क्या होगा? वट एवर साइट्रिक एसिड इज देयर, दिस साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनेटेज एंड फाइनली आइसोसिट्रेट। मतलब ये साइट्रिक एसिड जो है उसका आइसोमराइजेशन होगा, लेकिन वो आइसोमराइजेशन क्या है? दो स्टेप में होता है। So isomerization of citric acid takes place in two steps. So in the first step, citric acid is converted into cis-aconitase by the enzyme aconitase, and then cis-aconitase is converted into isocitrate by the enzyme aconitase again, both. Okay. So isocitric acid you are going to get isocitrate. ये हुआ second step. Second step में क्या मिला है आपको? Isocitrate और isocitric acid, citric acid और isocitric acid. So isocitrate. आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो, आइसोसिट्रेट का ऑक्सैलो सक्सिनेट बनता है बाय द एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। तो ये यहाँ पे ये रिएक्शन में क्या होता है, एक NADH रिलीज होता है, NADH रिलीज। डिटेल में पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर के साथ। ओके, देन ऑक्सैलो सक्सिनेट जो है, सो दिस NADH मतलब क्या? इट विल गो इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन and it will give you 3 ATP. Then oxalosuccinate, it is converted into alpha ketoglutarate, by the enzyme isocitrate dehydrogenase। तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ये उसका कार्बन एटम कम हो जाता है, बट उसमें ग्लूटामेट ऐड किया जाता है, तो अगेन कार्बन एटम बढ़ जाता है। ग्लूटामेट इट विल फॉर्म ए अल्फा कीटोग्लूटारेट विद द, बाद में इसका डीहाइड्रोजनेशन होता है, डीहाइड्रोजनेशन, अल्फा कीटोग्लूटारेट विल बी डीहाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म ए सक्सिनिल कोए, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रेगुलेटरी स्टेप इन द क्रेब्स साइकिल, ये रेगुलेट करता है क्रेब्स साइकिल, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज, ये स्टेप conversion of alpha ketoglutarate to the succinyl CoA, this is the rate determining step। तो इसमें भी क्या है, एक NADH मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक ना, तो वो क्या करेगा, 3 ATP देगा आपको। नाउ succinyl CoA is converted into succinate or succinic acid by enzyme succinate, so here you are going to get 1 ATP। succinate is converted into fumarate by the enzyme succinate dehydrogenase, here FAD is converted to FADH2। FAD मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो NADH जो है वो 3 ATP देता है ETC से, और FADH जो है वो 2 ATP देता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे 2 ATP मिलेगा आपको। सो फ्यूमरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैलिएट और मैलिक एसिड बाय द एंजाइम फ्यूमरेज। ओके, नाउ मैलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिड बाय द एंजाइम मैलिएट डीहाइड्रोजनेज, यहाँ पे भी NADH मिल जाएगा। देखो आपको टोटल ATP कितना मिला है, ठीक है, टोटल ATP कितना मिला है, जो पहला स्टेप था यहाँ पे, ये दिस NADH विल गिव यू 3 ATP, देन अगेन दिस NADH विल गिव यू 3 ATP, ओके, दिस is 1 ATP single, then this FADH2 will give you 2 ATP and this NADH will give you 3 ATP। तो कलेक्ट करो इसको, ये 3 प्लस ये 3 6,
प्लस ये 3 9, ठीक है, ये 10 और ये 2 कितने हो गए 12। रिलीज नहीं हो रहा है, वो लग रहा है, वो एंजाइम कैटलाइज करने के लिए मैग्नीशियम आयन एज अ को फैक्टर लग रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, वो लग रहा है, को फैक्टर है वो। इरिवर्सिबल स्टेप देख लिए, रेगुलेटरी स्टेप देख लिए, एनर्जेटिक्स देख लो। ग्लाइकोलाइसिस में अंडर एरोबिक कंडीशन 8 एटीपी मिलेगा आपको, देखा है हमने। साइट्रिक एसिड साइकिल में 30 एटीपी। 30 एटीपी कहाँ से आ गया ये आपका, एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे। 38 एटीपी कैसे आता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना है 38। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडर कंप्लीट अंडर एरोबिक कंप्लीट ऑक्सीडेशन अंडर एरोबिक कंडीशन विल गिव यू 30 एटीपी, 38 एटीपी 38। पहले तो आपका ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसमें कितना मिलेगा आपको, ग्लाइकोलाइसिस में ये ग्लाइकोलाइसिस 8 एटीपी, राइट। उसके बाद में जो पायरुवेट का है, पायरुवेट का एसिटिल कोए बनेगा, पीडी पायरुवेट का एसिटिल कोए बनेगा। वो जो रिएक्शन है अपन ने देखा है उसमें कितना एटीपी मिलता है 6 एटीपी। और जो क्रेब साइकिल है उसमें कितने मिलता है 12 एटीपी। लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो यहाँ पे 24 क्रेब साइकिल, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 8 80, 38। तो बरोबर है ना, 38 एटीपी आफ्टर एक complete oxidation of glucose, one molecule of complete oxidation of 1 molecule of glucose after complete oxidation will give you 30 एटीपी। तो पहले तो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा 8 एटीपी बनेगा, उसके बाद में जो पायरुवेट बनता है एंड प्रोडक्ट उसका एसिटिल कोए बनेगा, वहाँ पे 6 एटीपी मिलेगा। और एसिटिल कोए जो बना है 2 मॉलिक्यूल, वो एसिटिल कोए क्रेब साइकिल में आएगा 12 एटीपी बनाएगा एक मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल का होगा 24। तो 24 प्लस 6 प्लस 8 हो गया 38 अंडर एरोबिक कंडीशन, अंडर एनारोबिक कंडीशन। ये 30 कहाँ से आया है मैं बोलता हूँ आपको, 30 कहाँ से आ गया है 12 है ना, 12 आता है ना क्रेब साइकिल में। हाँ, तो 12 किसका है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए, 2 मॉलिक्यूल कितना हो गया 24। अभी 30 कहाँ से आ गया, जो 6 जो है यहाँ पे, जो ये जो 6 है वो ऐड करके रखा है वहाँ पे। जो पायरुवेट का कन्वर्जन, तो ये हार्पर के बुक है, हार्पर में जो हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री उसमें लिखा है 30 एज पर द हार्पर एंड मतलब ये जो ना, तो इस तरह ये 30 आता है, लेकिन उसमें एन ए डी जो होता है ना, एन ए डी एच एंड एफ डी क्या है, एन ए डी एच, हाँ, वो जो है ना उसमें क्या है कि एज पर द रिसेंट एविडेंस, अपन एक जनरली बोलते हैं कि एन ए डी एच का मॉलिक्यूल 3 एटीपी देगा और एपीडीएच का मॉलिक्यूल 2 एटीपी देगा। लेकिन एज पर द रिसेंट एविडेंस थोड़ा सा वो अलग है, 3 पॉइंट कुछ थे, 2 पॉइंट कुछ थे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऐसा दिया है। लेकिन आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड रखना नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन विल गिव यू 30 एटीपी। कैसे देगा 38, पहले तो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस के अंडर आएगा आपका 8 एटीपी, उसके बाद में पायरुवेट का कन्वर्जन जब एसिटिल कोए में होगा तो वहाँ पे मिलेगा आपको 6 एटीपी, ठीक है। और क्रेब साइकिल का एक मॉलिक्यूल जो है एसिटिल कोए का वो 12 देगा, तो 2 मॉलिक्यूल है, ऊपर से 2 आ रहा है, तो 24 प्लस 6 प्लस 8 कितना होगा 38 एटीपी। क्लियर। सो रोल ऑफ विटामिन्स इन द टीसीए साइकिल, जीपैट 2023, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था, रोल ऑफ विटामिन्स इन द टीसीए साइकिल। तो यहाँ पे मैंने ये इमीडिएटली आपको ये ऐड किया है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ। Role of vitamins in the TCA cycle. What is the role of vitamins as a cofactor in the enzymes? So that was asked in the GPAT 2023. Recently जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था, व्हाट इज रोल ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2, ये विटामिन के बारे में अपन तब देखेंगे पूरा। सो राइबोफ्लेविन इज ए विटामिन प्रेजेंट इन द फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फेडी होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो इट इज अ को फैक्टर, को फैक्टर फॉर सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस इन द क्रेब साइकिल। ये नियासिन क्या है, नियासिन मतलब विटामिन B6 निकोटिनिक एसिड। सो नियासिन इज अ को फैक्टर अगेन फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर आइसोलेटेड डीहाइड्रोजनेस। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग, आप जाके देख लो पेपर, पेपर देखो आप जाके, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। देन नेक्स्ट आता है थायमिन। थायमिन जो है विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1, ये क्या है थायमिन,
एज ए थायमिन डाइफॉस्फेट, टीपीपी आया था ना आपको, टीपीपी ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें ये थायमिन लगता है। तो फॉर कोफैक्टर फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, और उसमें एक लिपोइक एसिड भी है, वो भी एज अ कोफैक्टर है किसको, अल्फा कीटोग्लूटारेट को। ये दो है, थायमिन एंड लिपोइक एसिड दो अलग अलग है। थायमिन लिपोइक एसिड जो है वो अलग अलग है, लिपोइक एसिड वो वाला है अलग है, ये भी विटामिन है। देन पेंटोथेनिक एसिड, इसको विटामिन B7 बोलते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ को एंजाइम ए। और आप एज इट इज़ क्वेश्चन आ चुका है देख लो, ये मैंने अभी आपको नया नोट्स बनाया है, तो स्नैपशॉट ले लो, जो भी स्नैपशॉट लेना है ले लो, क्योंकि ये मैंने अभी कल ही बनाया है, ठीक है। तो वैसे तो क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन पूछा है तो ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया उसमें। इंटरमीडिएट्स गिविंग द अमीनो एसिड्स, कौन से इंटरमीडिएट कौन सा अमीनो एसिड है, तो पायरुवेट जो है ना, जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट, तो दैट विल गिव यू ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, सिस्टाइन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, उससे ये बनेगा। अल्फा अल्फा कीटोग्लूटारेट जो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो इंटरमीडिएट है क्रेब साइकिल में, वो ये अमीनो एसिड देगा, अर्जिनिन, हिस्टीडीन, ग्लूटामाइन, प्रोलीन। फ्यूमरेट जो है इंटरमीडिएट, वो फिनाइलअलनिन एंड टायरोसिन देगा। सक्सिल कोए जो है इंटरमीडिएट, तो वो क्या करेगा, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन। जो पहला टेबल है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये दूसरा टेबल मैंने आपको बोला, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, ये पहले टेबल के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कोई नहीं बोल सकता। तो मैंने दोनों भी आपको लिस्ट करके दिए हैं, स्नैपशॉट ले लो, स्नैपशॉट लेने में क्या दिक्कत है, एज इट इज़ क्वेश्चन आ चुका है, ये देख लो। आइडियली आपने नोट्स निकालना चाहिए कि मैं जब बोल रहा हूँ लिखना है आपने, अभी इतना लिखने का ऐसा, वो भी सिंपल है। अभी राइबोफ्लेविन लिखा है मैंने, तो राइबोफ्लेविन मत लिखो, उसको विटामिन B2 लिखो। नियासिन लिखा है, उसको विटामिन B6 लिखो। थायमिन लिखा है, उसको विटामिन B1 लिखो, B1 शॉर्ट में नोट्स निकाल दे जाओ, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेता है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये लास्ट में पूरा एनर्जेटिक्स देखो, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एनर्जेटिक्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये भी करेगा। तो पहला स्टेप कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटिक मिलते हैं, पहले स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप होता है ग्लूकोज टू ओके ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो ग्लाइकोजन का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें दो एटीपी के बजाय एक ही एटीपी लगता है, तो दैट्स व्हाई इन द ग्लाइकोजन यू आर गोइंग टू गेट 39 एटीपी। ओके, तो अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन से आया है तो उसमें 39 एटीपी मिलेगा, अगर ग्लूकोज ही है तो उसको 38 एटीपी मिलेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में सिर्फ 1 एटीपी यूटिलाइज होता है, बाकी सब सेम है। सेकंड, ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का वह ग्लूकोज 6% बनेगा, उसका फ्रुक्टोज 6% बनेगा, उसका ग्लूकोज 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो उसमें 2 एटीपी लगता है, सो 2 एटीपी आर कंज्यूम। थर्ड क्या है, ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, उसमें आपको मिलेगा NADH मॉलिक्यूल, लेकिन कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 NADH, 2 NADH विल गिव यू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो होता है, उसमें दो जगह पे एक एक एटीपी मिलता है, दो होने के कारण कितना मिलेगा टोटल, 2 मतलब 4 एटीपी। तो नेट गेन ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितना है, नेट एटीपी कितना मिल रहा है ग्लाइकोलिसिस में, अंडर एरोबिक कंडीशन इन द ग्लाइकोलिसिस यू आर गोइंग टू गेट 8 एटीपी। अगर ग्लाइकोजन है तो 9 एटीपी मिलेगा, ग्लूकोज है तो 8 एटीपी मिलेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन में 2 एटीपी की जगह एक ही एटीपी कंज्यूम होता है, तो एक बढ़ेगा ना। सेकंड स्टेप जो होता है पायरुवेट टू एसिटिल कोए, तो उसमें आपको 6 एटीपी मिलता है, कैसे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोए, 2 NADH बिकॉज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, आपने देखा है वो रिएक्शन 3 एटीपी मिलता है, तो एक मॉलिक्यूल है पायरुविक तो 3 मिलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल कितने, 2 है, TC, तो आइसोसिएटेड डीहाइड्रोजनेज पहला है, 2 NADH मिलता है आपको, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना एसिटिल कोए के, तो एक ही मिलता है, लेकिन आपको मॉलिक्यूल कितने, 2 है, तो 6 एटीपी। अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटारेट में जो NADH मिलेगा वो 2 मिलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल 2 है, अपन ने एक ही देखा है साइकिल में, वहाँ पे 6 एटीपी। जो सबस्ट्रेट लेवल है उसमें एक एटीपी मिलता है, तो मॉलिक्यूल 2 है तो 2 एटीपी। सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज में FADH मिलता है एक, लेकिन मॉलिक्यूल 2 है तो 2 FADH, तो दे विल गिव यू 4 एटीपी। एंड मैलेट के टाइम पे NADH मिलता है वो 2, तो इट विल गिव यू 6 एटीपी। तो टोटल अगर करेंगे वो यूज़ किए वाले और जो मिले, टोटल 38 एटीपी
from one molecule of glucose. So complete oxidation of glucose will give you 38 ATP. अगर ग्लाइकोजन है तो उसमें 1 ATP कम यूटिलाइज किया जाए तो उसमें 39 ATP मिलेगा. एनाएरोबिक कंडीशन ओनली 2 ATP. अगर एरोबिक मतलब ऑक्सीजन है तो पायरुवेट बाद में एसिटिल कोए बनेगा, बाद में क्रेब्स साइकिल में आएगा. लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज का पायरुवेट बनेगा और ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टेट बनेगा. लैक्टेट का बाद में एसिटिल कोई नहीं बनता तो वो क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, बाद में वो नहीं होगा. तो इसलिए under anaerobic condition glucose molecule will give you only 2 ATP. Under aerobic condition it will give you 38 ATP and glycogen molecule will give you 39 ATP. Is that clear? Okay, we will stop here. आप डाउट पूछो, मैं ये सेव कर लेता हूँ और बाद में और एक आपका सेशन होगा मेटाबॉलिज्म का, इसका कार्बोहाइड्रेट का. इसमें HMP शंट और बाकी के जो मेटाबॉलिज्म वो होगा, वो मैक्सिमम 45 मिनट्स